السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر. اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. لمس جنون بائی زرناب چاند ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ میری بیوی ہیں، آدم خان زادہ کی بیوی. آپ کمزور نہیں ہیں، بہادر بنے، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں. نفرت ہے تم باپ بیٹی سے مجھے. اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تمہاری یہ تصویریں سوشل میڈیا پر گھومیں گی اور تمہارا وہ شوہر میرے لوگوں کی ایک گولی کی مار ہے. شفا، آدم نے اسے دھیرے سے پکارا، مگر وہ اس قدر بری طرح خیالوں میں غلطاں تھی کہ آدم کی آواز نہ سن سکی. آدم اس کا لرزنا بہت اچھے سے محسوس کر رہا تھا. اس نے دوبارہ ہلکا سا اس کا بازو پکڑ کر پکارا. وہ آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی. وہ اس کا درد سمجھ سکتا تھا، لیکن کام تو کرنا ہی تھا، ورنہ ان مجرموں کو شے مل جاتی. آدم خان زادہ کو اپنا آپ ان آنکھوں میں ڈوبتا محسوس ہوا. اٹھ جائیں. جج صاحب کو جو بھی پوچھیں سب سچائی سے جواب دینا، ڈریے گا مت، میں یہی بیٹھا ہوں. آدم سے اسے حوصلہ دیتا آگے کی طرف اشارہ کر گیا. وہ لرزتی ٹانگوں سے اٹھی اور اس مخصوص جگہ پر کھڑی ہو گئی. کیا نام ہے آپ کا؟ شہریار افندی نے پیشہ وارانہ انداز میں پوچھا. شفا آدم خان زادہ، اس نے دھیرے سے جواب دیا. آدم کے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ بکھر گئی. اشفاق احمد آپ کے کیا لگتے تھے؟ میرے ابو. 18 مارچ کی رات کیا ہوا تھا؟ شہریار کے پوچھنے پر اس نے سامنے اپنے باپ کے قاتل کو دیکھا جو اسے ہی گھور رہا تھا. اس نے مڑ کر دائیں طرف بیٹھے آدم کو دیکھا جو آنکھوں سے اسے بولنے کا اشارہ کر رہا تھا، مگر اس کی نظر پیچھے موجود ایک وجود پر اٹک گئی جو اسے تنزیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی. اس نے گھبرا کر نظروں کا زاویہ بدل لیا. 18 مارچ کی رات کیا ہوا تھا؟ شہریار نے دوبارہ پوچھا. میں اپنے ابو کے ساتھ رات تک کھانا کھا رہی تھی کہ اچانک دو نقاب پوش لوگ ہمارے گھر میں گھس گئے. انہوں نے ابو سے ساری قیمتی چیزیں مانگی، مگر ابو نے منع کر دیا اور ان سے مزاحمت کرنے لگے. اس دوران ان نقاب پوشوں نے ابو پر گولی چلا دی. وہ آنسوؤں کے درمیان اٹکتے ہوئے انہیں بتانے لگی. آدم حیران تھا. کیا ان دونوں میں سے ایک افضل ملک بھی تھا؟ شہریار نے دوبارہ پوچھا. وہ نظریں جھکائے نفی میں سر ہلا دی. آدم کو 100 بالٹ کا جھٹکا لگا تھا. کیا اس رات آپ کے بابا کا قتل افضل نے کیا تھا؟ نہیں. اس رات افضل آیا تھا آپ کے گھر؟ نہیں. اس کا جواب پر وہاں موجود کچھ لوگوں کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، اور آدم اور شہریار حیران پریشان تھے کیونکہ آدم افضل کی پکچر شفا کو دکھا کر پہلے ہی پوچھ چکا تھا. اس سے تو آج جھوٹ بولنے کی وجہ سے سمجھ نہیں آئی. ایک دم غصے کی لہر سے اسے اپنے جسم میں اٹھتی محسوس ہوئی. وہ لرزتی ٹانگوں سے وہاں کھڑی تھی. شفا کی گواہی کی وجہ سے فیصلہ افضل کے حق میں ہوا تھا. فیصلہ ہوتے ہی وہ بنا کسی کی طرف دیکھے شہریار کو اشارہ کرتا شفا کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ سختی سے تھامتا کمرہ عدالت سے نکل چلا گیا. رات دیر سے وہ گھر میں داخل ہوا. اس کا دل بار بار اماں جان کے کمرے کی طرف ہمک رہا تھا. اس کی بیوی چھپی بیٹھی تھی. اس نے خود پر ضبط کر کے کڑے مراحل بٹھائے اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا. کمرے میں آ کر وہ بنا لائٹ آن کیے واش روم چلا گیا. تھوڑی دیر بعد وہ صرف ایک ٹراؤزر میں واپس آیا اور بیڈ پر اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا. ایک دم اسے کچھ محسوس ہوا. ہاتھ بڑھا کر دیکھا تو وہ کوئی وجود تھا. اسے سمجھنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگا وہ کون ہے. ایک دم اسے کھینچ کر اپنے پاس کیا اور اسے سختی سے اپنے سینے میں بھینچ لیا. 2 دن اس سے دور رہا تھا، زندگی ویران سی ہو گئی تھی، اور آج اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر اس کی تمام تھکاوٹ اترتی محسوس ہوئی. وہ جو نیند کی وادیوں میں گھوم رہی تھی کسی کے کھینچنے پر بوکھلا کر اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی. اسے اپنی ہڈیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہوئی. اتنی سختی تھی بلاج کے لمس میں. درد ہو رہا ہے، وہ دھیرے سے منمنائی. بلاج تھوڑا سا درد ہوا مگر اسے چھوڑا نہیں اور ہاتھ بڑھا کر سائڈ لیمپ آن کر دے. نائٹ بلب کی ہلکی روشنی اس کا چہرہ بلاج شاہ کے سامنے تھا. سختی سے نیچے ہوئے آنکھیں اور گلابی ہونٹ اسے کسی اور ہی جہاں میں جا رہا تھا. اس کی نظریں بےتابی سے آیت کے چہرے کا طواف کر رہی تھی. اس کی لرزتی پلکوں کو وہ خمار آلود نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. آیت بنا آنکھیں کھولے خود کو آہستہ سے چھڑانے لگی. کیوں ڈر سے بند کرتی ہو آنکھیں؟ یقین کرو جانم، کوئی چومنے سے نہیں مرتا، وہ گمبھیر لہجے میں بولتا. اس کی آنکھوں میں لب رکھ کر دور ہوا تھا.
आयत झट से अपनी आंखें खोलकर खौफजदा नजरों से देखने लगी। नींद से जागने की वजह से आंखें गुलाबी हो रही थी। उसने देखेंगे तेरी आंखों का कच्ची नींद से जगह जगह कर तुझे। वो इसकी गर्दन में झुके कान में धीमी सरगोशी कर गया। दिल शरारत पर आमादा था इसे अपने कमरे में देखकर। इसे खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसके लफ्ज सरसराते हुए गर्दन का तवाफ कर रहे थे। मगर बलाज, इसके लम्स और बेबाक लफ्जों ने घबरा कर इसने पुकारा। बलाज ने गर्दन उठाकर इसे देखा जो घबराई हुई सुर्ख चेहरे से इसे कोई गुड़िया ही लगी। जी जान, बलाज ने अपनी शहादत की उंगली इसके चेहरे पर फेरते पूछा। वो मुझे मुझे नींद आ रही है, वो मुंह फुसौड़ कर बोली। इसका इतने पास आना इसकी धड़कनों की रफ्तार बढ़ा गया था। मैं तो रातों से सोया नहीं हूँ। वो अपने होठों का लम्स इसके चेहरे पर छोड़ता गंभीर लहजे में बोला। नजरें बार बार इसके होठों पर अटक रही थी। छोड़े, वो जरा इसकी नजरों से घबरा कर सख्ती से बोली। ना छोड़ा तो? बलाज ने भी इसी के अंदाज में जवाब दिया। मैं कल अम्मा जान के कमरे में सो जाऊंगी। इसने बलाज को डराना चाहा और इसका तेज बिल्कुल निशाने पर लगा था। जान ना ले लूंगा तुम्हारी अगर आज के बाद अम्मा जान के कमरे में सोई तो। बलाज ने घूर कर देखा था। अगर आपने तंग किया तो मैं सच में कल वापस कमरे में आऊंगी ही नहीं। वो इस बार जरा इतरा कर बोली। दिल में एक अजीब सी खुशी थी इस बात की कि वो इसके बगैर रह नहीं सकता। ओके, एक शर्ट पर छोड़ूंगा, इसने संजीदगी से कहा। मुझे कबूल है, वो जल्दी से बोली। वो बस इसे दूर करना चाहती थी। इसे अपनी सांसें तेज रफ्तार से चलती महसूस हो रही थी। पक्का तुम मुकर नहीं सकती थी? पक्का नहीं मुकरूंगी, मुझे किस करो। मैं उसकी आंखों में देखता पुरशोक लहजे में बोला। इसकी बात पर आयत का मुंह खुला का खुला रह गया था। कितने वो हैं आप? वो नजर चुरा कर बोले। गाल शदीद लाल हो गए थे। क्या हूँ? बलाज ने संजीदगी से पूछा जबकि आंखें चमक रही थी। ये पहली रात थी जब वो नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह बात कर रहे थे और बलाज को ये सब इतना अच्छा लग रहा था कि बस वक्त यहीं रुक जाए। बेशर्त इसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही बलाज झुक के इसके लफ्ज उचक गया। वो इसकी बढ़ती गुस्ताखियों पर शर्म से आंखें मीच गई। बलाज इसके होठों को आजादी बख्शता इसे खींचकर अपने सीने में भींच गया। सो जाओ, बालाज धीरे से बोलता इसके बालों में लब रखकर सुकून से आंखें मूंद गया। आयत ने गहरी सांस ली और सोने की कोशिश करने लगी। पता नहीं इसने जो फैसला किया था वो ठीक था या नहीं, मगर वो अपनी फैमिली को किसी भी सूरत इस इल्जाम से निजात दिलाना चाहती थी। इसलिए वो बलाज के सामने खुद को नॉर्मल जाहिर कर रही थी। इसकी तेज ड्राइविंग इसके शदीद गुस्से में होने का पता दे रही थी और वो फ्रंट सीट पर बैठी मुसलसल हिस्सों से रो रही थी। वो जब भी गुस्से में होता था अपना गुस्सा इंतहाई संगीन जुर्म में बंद मुजरिमों पर उतारता था। और आज तो उसके साथ वो हंसती थी जो इसके गुस्से की असल वजह थी। मगर वो चाह कर भी इसे अपना गुस्सा नहीं दिखाना चाहता था। चुप हो जाए, वो सर्द लहजे में बोला। मगर शिफा की हिचकियों में मजीद इजाफा हुआ था। मैंने कहा चुप हो जाए, आपको बात समझ नहीं आ रही? आदम खान ज्यादा मजीद अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया था, इसलिए साइड पर गाड़ी रोककर इस पर चीखा था। शिफा इसकी डांट पर सहम कर इसी के सीने में छुप गई थी। आदम एकदम ठहर गया। इसे अपने सीने पर इसके आंसू बुरी तरह महसूस हो रहे थे। वो इसके शर्ट को मुट्ठी में भींचे बहुत ज्यादा रो रही थी। आदम ने इसके गिर्द बाजू बांध दिए और इसे रोने दिया। जब रोते रोते इसके आंसू खत्म हो गए तो वो आहिस्ता से इसके हिसार तोड़कर दूर हुई। आदम ने टिश्यू निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाया। शिफा ने भीगी नजरें उठाकर इसकी तरफ देखा जो संजीदगी से इसे देख रहा था। वो टिश्यू इसके हाथ से लेकर अच्छे से अपना चेहरा साफ कर गई और सीधी होकर बैठ गई। आदम कुछ नहीं बोला, दोबारा ड्राइविंग स्टार्ट करके रेस्टोरेंट के रास्ते पर गाड़ी डाल दी। मुझे भूख नहीं, रेस्टोरेंट देखकर शिफा ने धीरे से कहा। आज वो सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने बाप के कातिल को पहचानने से इनकार कर चुकी थी। वो कैसे कुछ खा सकती थी? आपको भूख नहीं है मगर मुझे है। अंदर चले, वो इसका हाथ पकड़ता अंदर चला गया। वो दोनों सेकंड फ्लोर पर एक पुरसुकून जगह पर बैठे थे जहां एक बाहर का व्यू बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था। शाम के 6 बज रहे थे और समंदर के किनारे बने इस रेस्टोरेंट से समंदर का मंजर बहुत खूबसूरत नजर आता था। क्या खाएंगी? आदम ने मेन्यू देखकर पूछा। इसने नफी में सर हिलाया। लाल आंखें सूजी हुई थी, छोटी सी नाक भी मुसलसल रोने की वजह से सुर्ख थी। आदम ने अपनी मर्जी से ऑर्डर किया, इसकी तरफ मतवज्जा होकर बैठ गया। शिफा बार बार अपने हाथ की लकीरों को देखती और हिचकी लेती। और कोई इस वक्त आदम खान ज्यादा से पूछता वो कैसे खुद पर जब्त करके बैठा है।
आदम ने पानी की छोटी सी बोतल खोलकर इसकी तरफ बढ़ाई। इसने जल्दी से वो बोतल थाम ली। वो मुंह से लगाकर एक ही सांस में खत्म कर गई। वो बस किसी भी तरह अपने आंसुओं को रोकना चाहती थी जो बार बार निकलकर बाहर आ रहे थे। पानी का एक कतरा इसने थोड़ी के हम पर रख दिया। इसको देखकर आदम खान ज्यादा को अपने गले में शदीद प्यास का एहसास हुआ। इसने दूसरी बोतल उठाकर मुंह से लगाई। इसके बाद भी इसकी प्यास खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। आदम ने हाथ बढ़ाकर इसकी तोड़ी पर मौजूद कतरे को अपने अंगूठे से उचक लिया और अपने होठों से लगाकर अपनी प्यास बुझाने का इंतजाम किया। इसकी इस बेबाक हरकत पर शिफा की पलकें लरजी थी। वो अपनी गर्दन मजीद झुका गई। वेटर के खाना सर्व करने पर आदम ने गोलगप्पे की प्लेट इसके सामने की। मुझे नहीं खाना, इसने धीरे से कहा। आदम ने एक प्लेट में चाइनीज राइस और चिकन जलफ्रेजी निकालकर इसके सामने रखी। इसने फिर नफी में सर हिलाया। जब तक ये सारा खत्म नहीं करेंगी मैं आपको घर नहीं लेकर जाऊंगा। आदम सख्ती से कहता अपनी प्लेट पर झुक गया, जिसका मतलब था वो कुछ सुनना नहीं चाहता। और वैसे भी वो सिर्फ अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए यहाँ आया था, ताकि वो घर जाकर इससे नरमी सी वजह पूछ सके। वरना जितना गुस्सा इस वक्त इसको था, इससे कोई बैद नहीं था। वो इसे अच्छा खासा डांट देता। वो भी आदम के डर से आहिस्ता आहिस्ता खाने लगी। वो कब से सामने बैठी औरत की नजरें आदम पर और खुद पर महसूस कर रही थी। स्टाइलिश ब्लैक पैंट के साथ रेड शर्ट पहने, ब्लैक हील के साथ वो लेयर कटिंग में कटे हुए बालों में कोई हीरोइन लग रही थी। मगर शिफा को इसकी नजरें बहुत जहर लगी, जो आदम को दिलचस्पी से देख रही थी। मुझे घर जाना है, शिफा ने आदम को देखकर कहा, क्योंकि वो मजीद इस औरत की नजरें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। चलते हैं, वो वेटर को बिल का इशारा करता उठ गया। थोड़ी देर बाद आराम से इसका हाथ थामता निकला था, मगर इन हाथों में अब नरमी अब नहीं आई थी। रोने की वजह पूछ सकता हूँ आपसे? आदम खान ज्यादा संजीदगी से इसके सामने खड़ा पूछने लगा। वो शाम को इसे छोड़कर चला गया था। अब रात गए घर लौटा तो वो जाए नमाज में बैठी दुआ मांगते हुए रो रही थी। वो इसका इस कदर शिद्दत से रोना आदम खान ज्यादा के बर्दाश्त से बाहर था। इसकी दुआ मुकम्मल होते ही वह इसके सर पर खड़ा सख्ती से पूछने लगा। को कुछ नहीं। वह घबरा कर खड़ी हो गई। मैंने पूछा, रो क्यों रही हैं आप? आदम ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। मुझे अम्बू की याद आ रही है। अपने फादर के कातिल को बचाने के बाद इनको याद करने का हक नहीं बनता आपका? आदम सर लहजे में बोलता वहां से कबर्ड की तरफ बढ़ गया और अपना ट्राउजर शर्ट निकाल कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। पीछे वो जमीन पर बैठती हिचकियों से मजीद रोने लगी। वो कैसे अपना गम बताते किसी को? इसको तो सगे रिश्ते ने तकलीफ दी थी। 15 मिनट बाद जब वो वापस आया तो वो वैसे ही जमीन पर बैठी हिचकियों से रो रही थी। इसकी आवाज इतनी ऊंची जरूर थी कि बेड पर सोई मन्नत की नींद खराब हो सकती थी। आदम बेड की तरफ बढ़ा और मन्नत को उठाता कमरे से निकलने लगा। इसको निकलते देख वो घबरा कर इसके सामने आ गई। तो कब कहाँ जा रहे हैं? वो इससे सवाल करने लगी। आप अच्छे से रोना पूरा कर लें, डोंट वरी, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आदम ने संजीदगी से जवाब दिया। नहीं प्लीज। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले वो कमरे से निकल गया। इसके जाते ही वो बेड पर ऊंधे मुंह लेट कर फुट फुट कर रोने लगी। अल्लाह प्लीज मेरी मदद करे, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। अल्लाह मेरी मुश्किलें दूर फरमा, मैं मन्नत और आदम के बगैर नहीं जी सकती। वो दिल में अल्लाह से हम कलाम थी। आप मुझे शायद शदीद गुस्सा दिला रही हैं। अब आदम ने शदीद बरहम लहजे में बोला। अचानक पीछे से इसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर वो हड़बड़ा कर उठी थी। दुपट्टा इसके कंधे से सरक कर बेड पर गिर चुका था। वो घबरा कर इसे देखने लगी। इसे लगा था वो नाराज होकर चला गया है, वापस कमरे में नहीं आएगा। इसके माथे पर बलों को देखकर वो मजीद शर्मिंदा हो गई। इसलिए वो धीरे से कदम बढ़ाती इसके पास आई। वो खुद भी न जाने थी वो क्या करने जा रही है। फिर इसने वो क्या जो आदम खान ज़ादा ने कभी सोचा भी नहीं था। वो आगे बढ़ते हुए एड़ी केवल खड़े होते दोनों हाथों से इसका चेहरा थाम कर नीचे करते इसके माथे पर लब रख चुकी थी। इससे पहले कि वो इससे दूर होती आदम होश में आता इसे खींचकर इसके लबों को अपने लबों में कैद कर गया। शिफा ने इसकी शर्ट को सख्ती से थामी थी और अपनी मर्जी से पूरी करता वो इससे थोड़ा दूर हुआ था। इसने गहरी गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की, जबकि खुद इससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इतने पास आकर आप मेरे जज्बात को भड़का रही हैं। आदम खान ज्यादा की सरगोशी इसके कानों से टकराई। नहीं, वो मैं इससे कोई बात नहीं बन पाई थी, इसलिए नजरें झुका गई।
अगर आज आपसे कुछ मांगो तो मिलेगा? आदम गंभीर लहजे में बोलता इसकी धड़कनों को तेज कर गया। जी जी, आपको महसूस करना चाहता हूँ। बोझल लहजा जानलेवा था। शिफा ने अपनी नजरों को उठाना मुहाल हो गया। चेहरा कान की लो तक सुर्ख हो गया था। इट्स ओके, आपकी इजाजत के बगैर मैं कभी आपके करीब नहीं आऊंगा। सो जाएं आप, वो संजीदगी से कहता वहां से जाने लगा। शिफा का दिल इसकी नाराजगी का सोचकर बुरी तरह धड़का था, मगर इसमें हिम्मत नहीं थी हाथ बढ़ाकर इसे रोक ले। इसके सुर्ख कंधारी चेहरे को कश्मकश में देखकर आदम ने जाने के बजाय इसे खींचकर सीने में खींच लिया था। आप बहुत जल्द मुझे कहीं का नहीं छोड़े। बुरी तरह किसी नशे की तरह मेरे असाब पर सवार होने लगी हैं। आपकी खुशबू मुझे आपके पास आने पर उकसाता है। वो इसके बालों में मुंह छुपाए धीमी से सरगोशी कितने करने लगा। मेरे सब्र का मजीद इम्तिहान मत ले। मेरे जज्बात मेरे इख्तियार से बाहर हो रहे, मगर आपकी इजाजत मेरे लिए सबसे अहम है। वो उसकी गर्दन पर अपनी बियर्ड रगड़ता इसके जिस्म में सनसनी दौड़ाने। आदम के बियर्ड की चुभन इसकी गर्दन में गुदगुदी के बायस बन रहे थे। आप जानती हैं, आपके आंसू मुझे तकलीफ देते हैं। इन आंखों में मैं बस खुशी के दीप जलते देखना चाहता हूँ। इन आंखों में मैं अपने लिए मोहब्बत देखना चाहता हूँ। वो गंभीर लहजे में बोलता इसे लरसने पर मजबूर कर गया। आदम की आंखों में इसके बिखरे सराफे को देख खुमार उतरने लगा। न जाने वो कितने दिनों से इसकी गुर्बत का तलबगार था। इसकी खामोशी इसे मजीद गुस्ताखियों पर उकसा रही थी। रोने की वजह से पूरा चेहरा पहले ही लाल था। इसके लफ्जों ने मजीद सुर्ख कंधारी कर दिया था। इसके गाल मुझे बुरी तरह महका रहे हैं। वो अपने हाथ का अंगूठा इसके गाल पर फेरता गंभीर लहजे में बोला और झुककर इसके सीधे गाल पर लब रख गया। इसके लम्स पर शिफा ने सख्ती से अपनी आंखें मींच ली। आदम इसके दूसरे गाल पर झुका नरमी से वहां अपना लम्स छोड़ने लगा। कमर में इसके हाथ की गर्दिश ने पहले ही इसकी सांसें रोक रखी थी। गाल पर इसकी मूंछों की चुभन ने मजीद इसके दिल की धड़कन की स्पीड बढ़ा दी थी। इसने आदम को खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर आज वो दूर होने का नाम नहीं ले रहा था। आदम खान ज्यादा इसकी मजाहमत को नाकाम बनाता इसके होंठों को अपनी गिरफ्त में ले गया। शिफा इसकी झुलसा देने वाली गुर्बत में सब फरामोश करती अपने आप को इससे छुड़ाने लगी, जबकि आदम तो इसे किसी किसी और ही जहां में ले जाने का इरादा रखता था। वो इसे छोड़ने के लिए बजाय इसी हालत में बेड पर लेटा गया। इसकी सांसों को मध्यम महसूस करके आदम इससे थोड़ा दूर हुआ। वह इसकी बंद आंखों को चाहत से देखने लगा। इसके दूर होते ही शिफा ने लंबी सांसें लेना शुरू कर दी। अपनी सांसों को अतदाल में लाने के बाद इसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। नजरें जाकर आदम के खुमार आलोक निगाहों से टकराई तो वह खुद को छुपाने के लिए दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रख गई। आदम इसकी मासूम हरकतों पर मुस्कुराता लाइट ऑफ करके इस पर छुप गया। इसके दोनों हाथों की उंगलियों पर अपनी उंगलियां फंसाता वह इसके फरार की सारी राहें बंद कर दे। इसकी आंखों में कोई रियायत नहीं थी। वो आज इसके हर सांस पर काबिज हो जाना चाहता था। वो चाहता था इसकी बीवी को कोई तकलीफ याद ना रहे, बस अगर कुछ याद हो तो बस आदम खान ज्यादा और इसकी कुर्बत। वो इसकी गर्दन में बाल हटाकर वहां अपने लबों से इसकी जान निकालने का सामान कर रहा था। प्लीज नहीं, वो घबरा कर बोली। शिफा ने अपने हाथ छुड़ाने चाहे, मगर आदम इसके लबों पर अपने लब रखकर इसके लफ्जों को पी गया। वो इसके धड़कनों की गूंज अपने सीने पर महसूस कर सकता था। आदम खानजादा के दिलों की धड़कनों में आज एक तूफान बरपा था, जो आज सब कुछ बहा कर ले जाना चाहता था। आज वो किसी सूरत इसे छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। वो अपने भड़कते दिल को सुकून देना चाहता था, जो सिर्फ शिफा के वजूद से ही मुमकिन था। आदम ने इसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा और इसके कंधे से शर्ट सरकाता वहां झुक गया। इसके लबों ने आज शिफा की जान निकालने की कसम खाई थी। वो मजीद बर्दाश्त न कर पाते इसके कंधे को सख्ती से थाम गई। आदम था कि इसके दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बरसों की तिश्तगी थी जो पूरी ही नहीं हो रही थी। वो अपनी हर तिश्तगी मिटा देना चाहता था। शिफा इसके सीने पर जोर दे कर पीछे धकेलने लगी। आदम की बेताबियां और बेकरारी सहन कर पाना इसके बस की बात ना थी। आदम ने इसके दोनों हाथ अपने एक हाथ से जकड़ लिए, जिसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। इसका एक हाथ इसके जिस्म की गर्दिश करने लगा। जिसे सांस नहीं आ रहा। इसकी भराई हुई आवाज आदम के कानों से टकराई तो आदम खानजादा इसके माथे पर लब रखता इसे पुरसुकून करने के लिए लेटता सीने में भेज गया। इसके दूर होने पर भी इसकी धड़कनों का शोर बहुत ज्यादा था। डर से इसका पूरा जिस्म लरस रहा था, मगर वो आदम के सीने से लगी इसकी नजरों से छुपने की कोशिश में थी।
डर रही है मुझसे? वो उसे पुरसुकून करने के लिए बालों में हाथ फेरते पूछने लगा। शिफा ने इस बात में सर हिला दिया। अब वो उसके नर्म लहजे पर धीरे धीरे पुरसुकून हो रही थी। डरना भी चाहिए, आखिर मेरे इतने महीनों की बेताबियों का एहसास हिसाब देना है। वो खुमार आलूद लहजे में बोलता अचानक से इसे सीधा करता इसके कंधे पर झुक गया। अब इसके लव कंधे से नीचे का सफर बहुत बेबाकी से तय कर रहे थे। शिफा कांप कर अपनी सांसें रोक गई थी। इन सांसों की रवानी के लिए बहुत जरूरी हो गई। हाँ, वो अपने लबों का लम्स इसके वजूद पर छोड़ता धीमे लहजे में बोल रहा था। दुनिया के सामने सीरियस एंग्री मैन दिखने वाला शख्स सिर्फ इसका था। वो इस शख्स के दिलो दिमाग पर राज करने लगी थी। इसके लम्स पर वो बुरी तरह सुर्ख हो रही थी। वो इसके कान के पीछे मौजूद तिल पर बुरी तरह झुक गया। इसको बख्शता वो दोबारा इसके गर्दन पर झुक गया। इसके लम्स में बहुत बेकरारी थी। इसके जिस्म पर आदम खानजादा के लबों की गर्दिश ने इसकी रही सही कसर पूरी कर दी थी। वो इसकी कमर पर हाथ ले जाकर एक झटके से इसकी फ्रॉक की जिप खोल गया। शिवा ने इसकी शर्ट शिद्दत से अपनी मुट्ठी में भींच ली थी। जब इसने खुद को छुड़ाना नामुमकिन हो गया तो इसने खुद को आदम के रहमो करम पर छोड़ दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो सारे पर्दे गिराता इसे खुद में समेटता चला गया। वो इसके दुख को अपनी गुर्बत में भूलने पर मजबूर करता इसे सीने में भींच गया। मुझे बेटी चाहिए, तुम्हें पहले बता रहा हूँ। अर्श इसको सीने पर लटाए बोलने लगा। अकीदत ने इसे ढूंढने की कोशिश की जिसने कल रात इसका जीना हराम कर रखा था। घूरो मत। अर्श ने इसकी आंखों पर हाथ रखता माथे पर लफ रख गया। अकीदत की पलकें लरस गई। एक सुकून की लहर पूरे जिस्म में सराहित कर दी। चलो मान लिया तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन तुम अल्लाह से दुआ तो कर सकती हो ना। अर्श ने मस्कीन से शक्ल बनाकर कहा। लेकिन मैं अल्लाह से पहले अपने लिए प्यारा सा बेटा मांगूंगी। अकीदत ने हसरत से कहा। क्यों? अर्श ने नासमझी से कहा। ताकि वो अपनी बहन का मुहाफिज बने। भाई के बगैर लड़कियां रुल जाती हैं। मैं सोचती हूँ अगर आप नहीं आ रहे होते निकाह वाले दिन तो आज मेरी जिंदगी कैसी होती। एक छत के लिए मैं एक नशे इंसान का टॉर्चर सह रही होती। इसके लहजे का दर्द महसूस करके अर्श इसे सीने में खींच गया। तुम मेरे नसीब की थी तो कैसे किसी और के निकाह में जाते। अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है और हमेशा मेरी ही रहोगी। और मैं अपनी औलाद को इतना मजबूत बनाऊंगा कि वो कभी भी किसी की नाजायज बात बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो बेटा हो या बेटी। वो भारी गंभीर लहजे में बोलता इसके सारे पर दूर कर गया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर मेरी चीजों को हाथ लगाने की? जजा इसके सर पर खड़े जरा सख्ती से बोल। मुझे किसी भी चीज को हाथ लगाने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। सालार संजीदगी से बोलता अपने मोबाइल में गुम हो गया। जजा को इसका इस तरह रूखा अंदाज बहुत चुभा था। आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। अब कि वो जरा ना गवारी से बोली। सालार ने मोबाइल साइड पर रख दिया और पुरशौक निगाहों से इसे देखने लगा। मैंने ऐसा भी नहीं कहा था। अब इसकी नजरों से घबरा कर वो जाने लगी, मगर सालार ने खींचकर इसे गोद में बिठा लिया और इस इफ्तितार पर जी जान से लर्जी थी कि इसका इग्नोर करना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब जब इसकी पूरी तवज्जो खुद पर थी तब भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। छोड़ी, वो सख्ती से बोली, मगर निगाहें झुकी हुई थी। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। वो गंभीर लहजे में बोलता इसकी सांसें खुश कर गया था। और वैसे भी एक रेपिस्ट बंदे से कैसे उम्मीद कर सकती है कि वो इतने पास आकर तुम्हें छोड़ देगा। इसकी अगली बात ने जिजा को नजरें उठाने पर मजबूर कर दिया। सालार शायद नजरों से ऐसे ही देख रहा था। मैं उस वक्त मुझसे इसने कुछ कहना चाहा, मगर सालार झुककर इसके होंठों पर झुककर इसकी जान निकाल गया। इसके लम्स में इस कदर सख्ती थी जिजा को अपने मुंह में खून का जायका महसूस हुआ। अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन इसके होंठों पर निकाल कर वो इसे बेड पर धकेल कर कमरे से निकल गया। इसके जाते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। इसके मुंह से गुस्से की हालत में निकले हुए अल्फाज सालार को इतनी तकलीफ देगा इसे अंदाजा नहीं था। वो जानती थी कि इन सब का बदला आयत से लिया जाएगा। शाह मेंशन में एक खूबसूरत सुबह का आगाज था। आयत बलाज के उठने से पहले ही तैयार होकर बाहर आ गई थी। सिर्फ जोड़े में हल्का सा मेकअप किए, कानों में नाजुक से टॉप्स पहने वो बहुत हसीन लग रही थी। अम्मा जान ने इसे अपने पास बिठाकर नजर उतारी थी और इस पर पैसे वार कर मुलाजमा को पकड़ा दिए थे। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। अम्मा जान की दुआ पर वो धीमे से मुस्कुराई थी। मैं बहुत खुश हूँ तुम अपनी मर्जी से अपने असल के पास चली गई। तुम्हारी इस समझदारी की मैं कायल हो गई हूँ।
समझदार बीवियां ही घर को जन्नत बनाती हैं। अम्मा जान इसकी तारीफ करने लगी। वो बस धीमी सी मुस्कुराहट के साथ इनकी बातें सुन रही थी। बेटा जाओ, पलाश को बुला कर लाओ, नाश्ते का टाइम हो गया है। अम्मा जान के कहने पर वो ना चाहते हुए भी कमरे की तरफ बढ़ गई। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।